اللہ، کیونکہ مجھے ایک ایسی حدیث مجھے دوبارہ نظروں سے گزری کہ جس کو پڑھ کے مجھے خود بھی بہت اچھا لگا، اور ایک مسئلے پہ میں نے خود بھی اس کو اپلائی کیا اور میں نے کامیابی پائی۔ تو مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اس حدیث کو جب سنیں گے اور پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور یقیناً آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی تو دوبارہ آپ کو ریوائیو ہوگی، تو آپ کو ایک موٹیویشن ہوگی، آپ میں ایک فیلنگ آئے گی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی پریشانی کا دور، کوئی ناکامی کا دور، کوئی تکلیف کا دور گزر رہا ہے، تو آپ یقین کریں کہ اس حدیث کو سن کے آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں، مجھے کوئی ناکامی نہیں ہوئی ہے، میری کوئی تکلیف ایسی تکلیف نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ سب تکلیف کو دور کر کے ایک بہترین پلان کے ساتھ آپ کی زندگی کو بہت بہتر کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ ہم یہاں جو بات کریں گے وہ میری نہیں ہوگی، وہ اللہ کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہتر طریقے سے مجھ سے کہلوائیں گے۔ یہ میری دعا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، ریفرنس نمبر 2664۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2664۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ میں اللہ تعالیٰ be pleased with him narrated and reported that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that a strong believer more dearer and lovable in sight of Allah than a weak believer۔ یہ اس حدیث کی پہلی لائن ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے صحیح مسلم میں 2664 روایت ہے کہ ایک اسٹرانگ مسلم، ایک طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ ایک ویک بلیور، ایک کمزور ایمان رکھنے والے، کمزور ایمان رکھنے والے نہیں، کمزور مومن، پر خیر دونوں کے لیے ہے، کیونکہ کمزور ان سینس آف ہیلتھ، ناٹ ان سینس آف ایمان۔ بات ہم یہاں پہ کر رہے ہیں مومن کی، کمزور مومن ورسز ویک مومن، اسٹرانگ مومن ورسز ضعیف مومن۔ تو جو ایک اسٹرانگ مومن ہوگا اس کا ایمان اسٹرانگ رکھنے کے لیے اس کی صحت، اس کا ویژن، اس کا وزڈم، اس کا ایکشنز، اس کے پریکٹسز، سب کچھ بہت اسٹرانگ ہوں گے۔ اس کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، گھر کے کام، فیملی افیئرز، جاب، بزنس، سب کچھ اس کے اسٹرانگ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ مومن زیادہ محبوب ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسٹرانگ بلیور بنیں گے، اسٹرانگ بلیور in terms of all aspects۔ ایمان نمبر 1، اس کے بغیر تو مومن نہیں۔ تو ایمان کو مضبوط رکھتے ہوئے اپنی صحت کو، اپنے ذہن کو، اپنے ویژن کو، اپنی کارکردگی کو، اپنی کیپیسٹی کو، سب کو ہمیں اسٹرانگ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے۔ اور اس لائن میں ہے کہ خیر دونوں کے لیے ہے، ایک ویک مومن کے لیے بھی اور ایک اسٹرانگ مومن کے لیے بھی، خیر دونوں کے لیے ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد اس کی لائن ہے نمبر 2، وَأَحْرِصْ بِمَا لَا يَنْفَعُكَ۔ نمبر 3 ہے، نمبر 2
जो है वो आरस बिमा ला यनफुआ, यानी हिर्स करना है, आगे बढ़ना है कामों में, नफ़ा हासिल करने के लिए, फ़ायदा हासिल करने के लिए ईगर होना है, कोशिश करते रहना है। नंबर 3 है वास्तन बिल्लाह, वास्तन बिल्लाह, अल्लाह से इबादत करनी है। रेज योर हैंड्स टू सीक हेल्प, टू सीक need from Allah subhanahu wa ta'ala, Allah the Almighty. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वला नुआजिज़। अगर मेहनत और दुआ के बाद काम मुकम्मल ना हो, होता है ऐसा कि मेहनत भी मुकम्मल होती है, बहुत बहुत मेहनत होती है हर तरीके से, और उसके बाद दुआ बहुत ज़रूरी है। वास्तिन बिल्ला, अपने हाथ उठाने हैं दुआ के लिए हर वक्त। हमें पता है कि एक हदीस बहुत मशहूर है, सुभान अल्लाह, कि अगर जूतों की लेस भी बांधो तो अल्लाह ताला से दुआ करो। हमारे दीन में तो हर वक्त दुआ है, घर में दाखिल होने की दुआ, घर से बाहर जाने की दुआ, रात को सोते वक्त दुआ, सुबह उठकर दुआ, किसी काम को शुरू करने से पहले दुआ, इस्तिखारा करना और गिड़गिड़ा के दुआएं करना तहज्जुद में और नमाज के बाद, रोज़ा इफ्तार करते वक्त। मतलब दुआ इज़ अ वेपन ऑफ अ मोमिन। दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ जो है वो इबादत, एक बेहतरीन इबादत है। अल्लाह ताला को वो नमाज नहीं पसंद जिसमें दुआ ना की जाए। अल्लाह को दुआ बहुत पसंद है। अल्लाह को अल्लाह से मांगते रहना बहुत पसंद है, क्योंकि दुआ तो सिर्फ अल्लाह ही से करनी है जो हर शय पे कादिर है। तो इस हदीस को हम लेके चल रहे हैं। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर, एक कवी मोमिन, उसके लिए हमें कोशिश करनी है अपने ईमान को बढ़ाने की, अपने ईमान को स्ट्रेंथ देने की, अपने ईमान को बेहतर से बेहतर मजबूत करने की। अल्लाह पर मुकम्मल ईमान और अल्लाह के तमाम अहकामात पर और तमाम दीन के पिलर्स पर मुकम्मल यकीन और मुकम्मल स्ट्रॉन्गली बिलीव। उसके बाद वअहरिज़ बिमा ला यनफ़अ, हिर्स करनी है फ़ायदा मंद कामों में, नफ़ा बख्श कामों में। सबसे पहले तो एज ए मुस्लिम नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जिसका अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, जो जो चीज़ें हम पे फ़र्ज़ होती जाती हैं, उनको बेहतर से बेहतर तरीके से स्ट्रॉन्गली करना है, पूरी ताकत के साथ, पूरी सेहत के साथ, पूरे यकीन के साथ। फिर वो इबादत हों या वो हुकूकुल इबाद हों या फिर वो वर्ल्डली अफेयर्स हों, एजुकेशन, बिजनेस, जॉब, किसी भी फॉर्म में, मेडिसिन पढ़नी है, डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, अल्लाह की तबलीग करनी है, उस सब में मेहनत करनी है। उस सब के लिए एक बहुत ईगरली काम करना है, बहुत अपने दिल से, पूरे दिल की ताकत से काम करना है और उसको पाया तकमील तक पहुंचाना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, नंबर 2 अहरिज़ बिमा ला यनफ़अ, नंबर 3 वास्तिन बिल्लाह, रेज योर हैंड, दुआ करो। काम कर लिया, मेहनत कर ली, अब दुआ करो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अब अल्लाह से मदद मांगनी है, दुआएं करनी है, हाथ उठाने हैं, गिड़गिड़ाना है, रोना है, तहज्जुद पढ़नी है।
صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، استخارہ کرنا ہے۔ استخارہ بھی ایک دعا ہے، ایک مشورہ ہے اللہ سے کسی بھی کام کے سلسلے میں، کسی بھی اہم کام کے سلسلے میں یا کسی بھی کام کے سلسلے میں، کہ اللہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں وہ میرے لیے بہتر ہے، تو مجھے اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ تو استخارہ بھی ایک مصنون طریقہ ہے، اور استخارے کی دعا آپ لوگ کہیں سے بھی سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی، اگر آپ کہیں تو میں اس کا لنک بھی دے دوں گی۔ ہمیں کسی بھی اہم کام سے پہلے زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی جاب پہ، کوئی ہم ارادہ کرتے ہیں اپنے بزنس کا، اپنی فیملی افیئرس کا، گھر خریدنے کا، کسی بھی چیز کا، تو ہمیں استخارہ کرنا چاہیے، اللہ سے مشورہ طلب کرنا چاہیے۔ اس مشورے میں دعا بھی ہے کہ اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو مجھے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، ورنہ تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس کا بہتر سبسٹیٹیوٹ، اس کا بہتر نیب البدل عطا فرما۔ اس کے بعد اس آیت کا اس حدیث کا نمبر 4، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، 2664، ونواجز، اگر بھرپور محنت کے بعد، بھرپور پلان کے بعد، بھرپور کوششوں کے بعد اور اللہ سے دعا کے بعد، مکمل دعاؤں کے بعد، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دعا کے بعد اگر وہ کام نہیں ہوتا، انفارچونیٹلی کوئی کمی رہ جاتی ہے، رزلٹ ہمارے حساب سے نہیں ہوتا، ہم اس کام میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو ایز اے ہیومن نیچر سب سے پہلے کیا ہوگا؟ ہم اداس ہو جائیں گے، ہم غمگین ہو جائیں گے، ہمیں ڈپریشن ہونے لگے گا، ہم نیگیٹو ہو جائیں گے۔ لیکن نہیں، یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ڈپریس نہیں ہونا ہے، غمگین نہیں ہونا ہے۔ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو بہتر چاہا وہ کیا، یعنی ہم نے ایک اچھا کام سوچا، اس کے لیے بھرپور محنت کی، اللہ سے دعا کی، اور پھر وہ کام نہیں ہوا، قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ کی قدر ہے، اس پہ راضی رہنا ہے، اس پہ صبر کرنا ہے۔ صبر کی سب سے بہترین فارم کیا ہے؟ فرسٹ کلیمٹی پہ جو صبر ہوتا ہے، یعنی مشکل پڑتے ہی جو صبر کیا تو وہ بہترین صبر ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو پھر صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن جیسے ہی مشکل پڑی، جیسے ہی ناکامی ہوئی، جیسے ہی تکلیف پہنچی اور صبر کیا اور راضی رہے اللہ کی رضا میں، تو یہ بہترین صبر ہے، اس کا بہترین اجر ہے۔ تو اس حدیث کو لے کے چل رہے ہیں، نمبر 4 اسٹیپ، ونواجز، تو پھر غمگین نہیں ہونا، کیونکہ پھر تو شیطان کا راستہ آ جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو تو کمزور بلیور پر وہ انتظار کرتا ہے کہ ایک اچھا بلیور کب کمزور پڑے تو وہ اس پہ حملہ کرے، وہ اس پہ ضرب لگائے، وہ پھر کامیاب ہونے کے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ویک ہوتا ہے اس وقت، لیکن ویک نہیں ہونا ہے، ونواجز، ویک نہیں ہونا ہے، اللہ پہ مکمل یقین کرنا ہے، یہ سوچنا ہے، یہ اپنے دماغ میں لے کے آنا ہے، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو بہتر چاہا وہ کیا، یہ میرا پلان تھا، میں نے کوشش کی، میں نے دعا کی، اب جو پلان ہوگا وہ اللہ کا پلان ہوگا، اور اللہ کا پلان تو بہت بہتر ہوگا۔ وہ اس وقت نہیں بہتر لگ رہا ہوتا، اس وقت تو ناکامی سامنے ہوتی ہے، اس وقت تو تکلیف سامنے ہوتی ہے، لیکن نہیں، اٹھنا ہے، ڈو مور، اور کرنا ہے، اور محنت کرنی ہے، کیونکہ ہمیں تو اللہ کی بات پہ یقین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا ہیں؟ ظاہر ہے جو اللہ نے کہا، قرآن اور مستند احادیث، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ مایوسی کفر ہے، کفر کیا ہے سوچیں ذرا، تو مایوسی تو کفر ہے نا، تو اعتماد رکھنا ہے مکمل، اور پھر اور کام کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ جو ہوا وہ بہتر ہوا، یہ قدر تھی، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اب جو ہوگا اللہ کی طرف سے وہ اس سے بہتر ہوگا، انشاءاللہ، انشاءاللہ کامیابی ضرور مقدر بنے گی۔ بہت چھوٹی سی مثال میری اپنی، جب میں نے یوٹیوب شروع کیا
तो मुझे पता ही नहीं था कि थंबनेल क्या है। फिर कोशिश की इस हदीस के मुताबिक कि कोई भी काम करो तो स्ट्रांगली, स्ट्रेंथ के साथ करो। तो फिर पढ़ना शुरू किया कि कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, कैसे करते हैं। पता चला कि थंबनेल भी बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट किया, अच्छा थंबनेल नहीं बना, लेकिन मैं गमगीन नहीं हुई। मैंने वही थंबनेल लगाया और आपको बताया कि अभी मैं मुकम्मल थंबनेल नहीं बना पा रही हूँ, कोई एरर आ रहा था। सेटिंग चेंज की और मेहनत की, फिर दुआ की, फिर आज अब जो मैंने थंबनेल बनाया है वो अब एक कंप्लीट थंबनेल है। अब वो मज़ीद अच्छा होगा, मज़ीद अच्छा होगा, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि मेरा थंबनेल कंप्लीट हो गया। उसमें अब एज सच कमी नहीं है। अब वो कितना अच्छा है, उसको मज़ीद अच्छा करना है और मेहनत करनी है। तो अगर मैं इस हदीस के तनाजुर में देखूं, इस हदीस के रेफरेंस से देखूं, तो मैंने स्ट्रेंथ की, स्ट्रॉन्ग बनी। जो चीज़ मुझे नहीं आती थी, यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, मुझे नहीं पता था। एक एम था मेरा, एहरिस बिमा ला यनफअक, हिर्स करो, एमलेस लाइफ नहीं गुजारो, अपने आगे गोल रखो। मेरा गोल था कि मैं अल्लाह का पैगाम आगे तक पहुंचाऊं। तो मुझे ये सोर्स नज़र आया, स्टार्ट किया, क्रिएट किया, डालती गई, वीडियो अपलोड करती गई। उसको सही तरीके से करना नहीं आता था, पढ़ती गई, सीखती गई, कोशिश करती गई। पहला थंबनेल बनाया, कंप्लीट नहीं बना, एरर आने लगी। ईमेल किया मैंने हेल्प सेंटर, फिर अल्हम्दुलिल्लाह देखें आप, आज कामयाब हो गई। मैं नहीं कहती कि मैंने कोई बहुत बेहतर थंबनेल बनाया है, लेकिन बना लिया है, मुकम्मल कर लिया है। अब और मेहनत करूँगी, क्योंकि मैं नाकामी पर गमगीन नहीं हुई। मैंने कहा नहीं, मुझे शैतान ने कमज़ोर नहीं किया। मैंने कहा नहीं, अल्लाह अब इससे बेहतर करवाएगा, मैं कोशिश करती रहूँगी। एहरिस बिमा ला यनफअक, ईगर रहो किसी भी काम के लिए। एंड देन अस्तईन बिल्लाह, रेज योर हैंड्स, दुआ करो अल्लाह से फॉर योर नीड्स। तो मैंने अपनी ज़रूरत के लिए अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे आसानी अता फरमा। अल्लाह ने आसानी अता फरमाई। कोई काम भी मुश्किल नहीं जब तक अल्लाह ना चाहे, और वो हर काम को आसान कर देता है। तो मायूस नहीं होना है। अगर आप में से जो कोई मुझे देख रहा है, अगर उसको किसी भी चीज़ में, अपने बिजनेस में नाकामी हुई है, या अल्लाह की इबादत वो जिस तरह करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, वो सोच रहे हैं कि अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो इतना दिल नहीं लग रहा, अगर कुरान पढ़ रहे हैं तो दिल पे उतना असर नहीं हो रहा, कोशिश करते रहें, ईगरली कोशिश करते रहें। इंशाअल्लाह एक दिन बेहतरीन नमाज होगी, एक दिन बेहतरीन कुरान पाक का तर्जुमा के समेत अमल करने की तौफीक अता होगी। अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, खुदा ना खास्ता नाकामी हो गई, तो फिर से दें, फिर से कोशिश करें, सब्जेक्ट चेंज करें। अगर मुमकिन है तो कोई दूसरा वे देखें, लेकिन पीछे ना हटें, कोशिश करते रहें। अगर कोई कंपनी खोलने का सोचा है, एम बड़े बड़े रखें, ख्वाब देखें, मना नहीं है इस्लाम में, क्योंकि हमें फैल चाहिए कामों के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, ज़कात देने के लिए, हज करने के लिए, अपनी सेहत बेहतर करने के लिए, अपनी फैमिली अफेयर्स को बेहतर करने के लिए हमें पैसा भी चाहिए। ये कोई बुरी बात नहीं है, पर पैसा खर्च कैसे करना है, जैसा अल्लाह ने कहा है। लोगों की हेल्प करनी है, लोग बीमार हैं, परेशान हैं। अगर अल्लाह ने हमें सेहत दी है और अभी पैसा नहीं दिया, तो हमें स्ट्रांग होके मेहनत करके इतना पैसा कमाना है कि अपनी ज़रूरत पूरी करें और लोगों की ज़रूरियात पूरी करें जो अभी डिसेबिलिटीज़ का शिकार हैं,
बीमारियों का शिकार हैं, परेशानियों का शिकार हैं, उनकी दिलजोई होगी, वो आगे बढ़ेंगे। किसी का रोज़गार खुलवा के दें तो उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी। इसके लिए किसकी ज़रूरत है? वेल्थ की ज़रूरत है। एरिस बिमाला जनफॉर, कोशिश करते रहो हर एस्पेक्ट में, जॉब में, बिजनेस में। ईमान तो है ही सबसे नंबर 1। ईमान में, नमाज में, रोज़े में, ज़कात में, हज में। यही बातें मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये हमारी रोज़ाना की लाइफ है, मेरी, आपकी। और अगर कभी नाकामी हो तो बिल्कुल गम ना करना। सूरह ताहा की आयत नंबर 46 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं देख भी रहा हूँ और मैं सुन भी रहा हूँ। यानी अल्लाह ताला हिम्मत दे रहे हैं कि नहीं डरो, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। तुमने मेहनत की, तुमने दुआ की और तुम कामयाब नहीं हुए, तो डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब अल्लाह साथ है तो किसका डर? अब अल्लाह का प्लान सामने आएगा। जो कदर थी, कदरुल्लाह वमा शाह फाला, वो अल्लाह की थी, वो पास्ट। कदर कभी भी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल नहीं होती, मुस्तकबिल के लिए नहीं कि मैं नाकाम होऊंगा। नहीं, हमें नहीं पता, अल्लाह ना करे हम नाकाम हो। हम क्यों नाकाम होंगे? जब हम अच्छा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, स्ट्रेंथ के साथ करेंगे, दुआ के साथ करेंगे, तो हमें ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपना वादा पूरा करते हैं। तो अगर नाकामी हो गई तो ये वक्ती है, ये एक टेस्ट है। हम कहते हैं ना, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये कदर थी अल्लाह की, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना है। अब जो होगा वो इससे बेहतर होगा। एक चीज़ अल्लाह ने हमसे ली, एक चीज़ हमें नहीं दी, क्योंकि हमें जो चीज़ मिलने वाली है वो उससे बेहतर है, वो उससे बेहतर होगी। इसलिए कदर हमेशा पास्ट है। मेरे साथ बुरा हुआ, मेरा प्लान नाकाम हो गया, मेरा बिजनेस ख़त्म हो गया, मैं कर्जे में डूब गया, मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, लेकिन नॉट फॉर फ्यूचर। मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मैं नाकाम होऊंगा, मेरा बिजनेस कामयाब नहीं होगा। नो, नेवर, ऐसा नहीं कहना। गुनाह है, मायूसी कुफ्र है, अल्लाह पे यकीन में कमी कुफ्र है। क्यों? शैतान का हरबा है ये, शैतान को तो दूर करना है। तो नंबर 5 है, व असाबिका मिन शैइन, और ये सब कुछ अल्लाह की कदर था। जो होगा वो बहुत बेहतर होगा, कामयाब होगा, और हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हमें क्या बनना है? स्ट्रॉन्ग बिलीवर, because he is more lovable and dearer to Allah Almighty. हमें एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनना है, और फिर मेहनत करनी है, और फिर दुआ करनी है, और फिर रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ना है। कामयाबी या नाकामी, उस पर मायूस नहीं होना है, शैतान के फंदे में नहीं आना है, नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं लानी है, पॉजिटिव रहना है, यकीन रखना है, फिर इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। ए वे टू सक्सेस, एक सक्सेसफुल लाइफ वेट कर रही है हम सबका, पर हमें उसके लिए काम करना है। ठीक, कुछ मुझे समझ में आया, कुछ आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो का टाइटल है कि कामयाबी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह, अल्लाह का वादा है। हर रात के बाद सुबह है, लेकिन उसका तरीक़ाकार है सब्र से, अल्लाह की मदद से, दुआ करके, मेहनत करके।
बिजनेस भी चलेगा, जॉब भी मिलेगी, इम्तिहान में कामयाबी भी होगी, फैमिली अफेयर्स भी बेहतर होंगे, जो चीज़ छीन ली गई उसका बेहतरीन नेमुल बदल भी मिलेगा। वो हमसे इसीलिए ली गई कि हमें बेहतर नेमुल बदल देना है, हम उससे बेहतर डिज़र्व करते हैं। हम जिस चीज़ के लिए रो रहे हैं हम उससे बेहतर डिज़र्व करते हैं, अल्लाह हमें उससे बेहतर देंगे। तो फिर हम आज इजाज़त चाहते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें बेहतर से बेहतर स्ट्रॉन्ग मुस्लिम और मुस्लिमा बनाए, दुआ करने की तौफीक अता फरमाए, शैतान से दूर रखे और कामयाबी अता फरमाए। हमने जितनी मेहनत की है, जिन कामों के लिए, अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और हमें सही विजडम दे और हमारी सोच सही हो, एम्स हो, गोल्स हो, उन्हें हासिल करने की ताकत हो, तो हमारी लाइफ कामयाब होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाना, हमें माफ़ कर देना, हमसे राज़ी रहना, हमारे घरों में अपनी बरकत और रहमत के साए रखना इंशाअल्लाह। बशर्ते हयात नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।